help in better planning and delivery of education. We have with us the resource person, Professor Arun Mehta. Professor Arun is former professor and head Department of Educational Management, Information System, National University of Education Planning and Administration. Over to you, sir. Thank you, UNICEF, NIT Srinagar, and Move Beyond for giving me this opportunity. Frankly speaking, it was very difficult for me to just sit and listening since yesterday morning. In this session, we are now discussing the role of data, which is a role of data which can be played while formulating annual plans in general and under Samagra Shiksha, which is the flagship program of Government of India. As you all know, Samagra Shiksha was the integration of previous Sarva Shiksha Abhiyan and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan program. So let us now focus on the role of data analysis while formulating plans. Data can play a very important role. Whatever data is required for efficient formulation of plan is now available in ready-to-use form, thanks to the activities undertaken as a part of the Unified District Information System for Education, through which the information is now available in ready-to-use form on all the aspects of school education in our country. As of now, we were collecting information only on the number of schools, enrollment, teachers, infrastructure. Now we have also started collecting information on a few IT-related variables also. We now have information on number of schools having computers, number of schools having functional computers, internet, functional internet, laptop, and other aspects also. But it is just beginning. And whatever information which is available on the IT-related variables are concerned, they are only at a point of time. You know, in India, we collect information on educational variables once in a year, and that is 30th September. So information and whatever numbers which are quoted here, they were as on 30th September 2021. So that information might have improved for the better now. So far as the planning is concerned, if we correctly analyze the data, believe me, half work is done. But unfortunately, you all know, despite being information available on every aspect of school education in terms of universal access, universal quality of education, universal retention, and universal enrollment or participation, despite that, the information is not optimally utilized. If the information is correctly utilized, problems are identified, focus groups are identified, definitely the half of the work is done. But unfortunately, there is a lot of scope in India, across the country, including Jammu and Kashmir, so far as the data utilization is concerned. So, there are different aspects. Let us first highlight the role of the diagnosis playing so far as the information analysis or plan formulation is concerned. The diagnosis, which is also known as the taking stock of the situation. Where do we stand? That is very important. Diagnosis play the role the doctor is playing. If we are not feeling well, we approach doctor, and doctor will ask us what is the problem. And on the basis of my information which I provide doctor, he will prescribe me. He is authorized only to prescribe the medicine. Then
based on the my sharing information with him. But unfortunately, in our country, without proper diagnosis, we prescribe the medicine. We prescribe, सबको लैपटॉप दे दो, सब लड़कियों को साइकिल दे दो, सबको इंसेंटिव दे दो, इस जगह स्कूल खोल दो, और अब तो नई बीमारी शुरू हो गई है, स्कूल बंद करने की नई बीमारी. आपके यहाँ भी पिछले साल करीबन 125 स्कूल बंद हो गई. ये तो बहुत ही नगण्य है, इट इज़ जस्ट वेरी नेग्लिजिबल. बट अगर आप पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 2017-18 से लेके 2021-22 में करीबन 72,000 गवर्नमेंट स्कूल्स है जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत चल रही थी, वो बंद कर दी गई है. किसी को कोई रीजन नहीं पता है, ये स्कूल क्या मर्ज हो गई है या बंद हो गई है या इनका डीमर्जिंग हो गया है या क्या हो गया है. मेरा ये मानना है कि करीबन 70-72 हज़ार स्कूल कम हो गई है, और वो भी गवर्नमेंट मैनेजमेंट के अंदर. तो ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है. दिस इज़ वेरी सीरियस इशू. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ वी अंडरटेक द डायग्नोसिस एक्सरसाइज प्रॉपरली, इट विल हेल्प अस इट विल हेल्प मी एज ए एजुकेशनल प्लानर टू नो what are the focus group which need your attention as planner. क्या भाई बच्ची स्कूल में नहीं आ रही है, उसका रीजन क्या है? ट्रांजिशन रेट कम है, उसका रीजन क्या है? रिटेंशन रेट इज वेरी लो, वेरी लो. ड्रॉप आउट इज स्टिल हाई. GER is very low, NER is very low. So what are the reasons? First of all, because of the diagnosis exercise, we will come to know about the unfinished task. And second important thing the diagnosis exercise will tell us is to know what are the locations or the areas which need your attention as education planner. अभी तो विक्स फार्मूला 44 चल रहा है, हर जगह एक ही दवाई दे दो आप, वो नहीं चलेगा जब तक इंडिकेटर्स को यूज नहीं करेंगे और इंडिकेटर बेस्ड आपका डायग्नोसिस नहीं होगा और डायग्नोसिस बेस्ड आपका इंटरवेंशंस नहीं होगा. आई एम सॉरी टू से we are still very far away attaining the goal of universal school education in the real sense. काफ़ी प्रोग्रेस की है यूनिवर्सल एक्सेस में, यूनिवर्सल रिटेंशन में, यूनिवर्सल पार्टिसिपेशन में, but unfortunately the goal is still far away, but we are moving towards achieving the goal, but still the goal is a distant one. जब आप डायग्नोसिस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है, क्वालिटेटिव करना है, टाइम सीरीज करना है, स्टॉक स्टैटिस्टिक्स करना है. यू हैव टू एनालाइज डेटा फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज, नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज, फॉर द फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिसएग्रीगेटेड डेटा, एग्रीगेटेड डेटा, एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन which is available for our consideration is to be considered so as to know where do we stand. The objective of diagnosis exercise is to present the truth and not to hide the truth. That is the very important aspect of education planning. But unfortunately nowadays data is not very rigorous. Rigorous analysis of data is not taking place. As you know better than me that district plans under the Samagra Shiksha now they are being formulated based on the 60 plus some Excel sheets. यहाँ से जो MIS का ऑफिसर है हर स्टेट का, वो एक्सेल शीट्स के अंदर डेटा भर के देता है. उसके बाद में एडसिल जो टेक्निकल सपोर्ट ग्रुप है समग्र शिक्षा का दिल्ली में, वहाँ जाके बैठते हैं और उसके बाद में नेगोशिएशंस होते हैं और फाइनली इट इज़ पुट अप फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड. So data analysis play a very important role so far as the formulation of the plan is concerned. बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ, बट टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैं केवल 3-4 जो मेन इंडिकेटर है उसके बारे में आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा. मुझे पूरी उम्मीद है पिछले 40 साल से मैं नीपा में होते हुए केवल यही काम कर रहा हूँ कि डेटा को एनालाइज करना की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है हमारे स्टेट लेवल ऑफिसर्स की, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स की, उनको कैसे और अच्छा किया जाए. लेकिन अब काफ़ी कुछ ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी
if you find, if you locate, if you pinpoint the person who can read the data, who can analyze the data, who can use and see its implication in plan formulation, तो भाई हर स्टेट के अंदर आपको एक ही बंदा मिलेगा. यहाँ पे आपको सुनीता फोतेदार मिलेगी, या विकास खजूरिया मिलेगा, या गुजरात में आसिफ मिलेंगे. इस तरह हर स्टेट के अंदर एक दो बंदे ही हैं जो डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, और ये सारे जो ऑफिसर्स हैं वो सब MIS के टीम के ही है. प्लानिंग वाले कहाँ हैं भैया? जो प्लान बनाने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनको अदा करनी है, उनका तो कोई रोल ही नहीं है. दे मस्ट प्ले. सो वी आर नॉट सीरियस अबाउट दैट. प्लानिंग टीम को फॉर्मुलेट कीजिए, रीफॉर्मुलेट कीजिए. ये तो अब पेपर पे रह गई है. उसमें जब सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ तो उसमें तो कहा गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्लानिंग टीम होगी, उसमें डाइट वाला भी बंदा भी होगा, NFE वाला भी होगा, मेन स्ट्रीम डिपार्टमेंट वाले भी होंगे, और सारे रूरल डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, सारे वो लोग मिलकर बैठ के प्लान बनाएंगे, और प्लान स्कूल से बनकर आएगा. स्कूल से बन के आने के बाद वो ब्लॉक का प्लान बनेगा, ब्लॉक के प्लान के बेसिस के ऊपर डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनेगा, और डिस्ट्रिक्ट प्लान के बेसिस के ऊपर वी विल फॉर्मुलेट द स्टेट प्लान्स. अनफॉर्चुनेटली द कंट्री हैज स्टिल टू सी स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स. तो अभी बहुत कुछ किया जाना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में भी ये काम और अच्छी तरह से कर सकते हैं. यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन का मतलब क्या है? इसके 4 कंपोनेंट्स हैं, आप सबको पता ही है. सबको स्कूल की सुविधाएं प्रदान करना, दैट इज यूनिवर्सल एक्सेस. सब बच्चों को स्कूल में लाना, यूनिवर्सल एनरोलमेंट. जो बच्चे स्कूल में आगे हैं उनको स्कूल में रोक के रखना, यूनिवर्सल रिटेंशन. और जो ड्रॉप आउट नहीं हुआ है और बच्चा कंटिन्यू कर रहा है सिस्टम में, एक लेवल ऑफ एजुकेशन से दूसरे लेवल ऑफ एजुकेशन में ट्रांजिट करें. और ट्रांजिट करने के बाद में वो अगर प्राइमरी से अपर प्राइमरी में चला गया है तो ही शुड कंटिन्यू रिमेन एंड कंटिन्यू एंड रीच ग्रेड 8 एंड पास ग्रेड 8 with the satisfactory quality of education. That is the meaning of universal school education और universalization of school education. लेकिन अब आपको पता है, अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने तो आपके स्कूल स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही परिवर्तन कर दिया है. स्कूल स्ट्रक्चर में फाउंडेशनल लेवल, उसमें आपके 3 to 5 और ग्रेड 1 और 2 इनको क्लब कर दिया है. प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर, प्रिपरेटरी फेज के अंदर ग्रेड 3, 4 और 5 को डाल दिया है. मिडिल स्टेज आपका पहले वाला ही है, अपर प्राइमरी लेवल 6, 7 and 8. And secondary stage, that is the 4th phase of the restructure school education, is the secondary level consisting of grade 9 and 10 previously of secondary and 11 and 12 of previously higher secondary. So ये 4 phases नए बने हैं. आज की तारीख में एक भी बंदा मुझे ये बता दे जम्मू एंड कश्मीर में इन 4 phases के हिसाब से एनरोलमेंट कितना है, ग्रॉस एनरोलमेंट कितना है, रिटेंशन रेट कितनी है, ड्रॉप आउट रेट कितनी है, ग्रेड टू ग्रेड ड्रॉप आउट प्रमोशन रिपीटिशन रेट कितनी है, क्योंकि किसी ने वर्कआउट ही नहीं किया है. और ये जम्मू एंड कश्मीर का ही मसला नहीं है. द लीड शुड हैव टेकन फ्रॉम द नेशनल लेवल. उनको सभी स्टेट के साथ में बैठ के नए इंडिकेटर को डेवलप करना पड़ेगा. द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन विच आई हैव जस्ट शेयर विद यू, ये 4 फेजेज की वजह से उनका मतलब भी बदल गया है. यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है? 1 से 8 या 3, 4, 5 या ECC E+1 and 2 या 9, 10, 11, 12. We have to rethink, sit and discuss and re-look into the existing indicators and evolve new set of indicators. मैंने अभी एक पेपर बनाया है, उसमें मैंने ये सारे इंडिकेटर्स को वर्कआउट किया है, बट अभी ये केवल ऑल इंडिया लेवल पे ही है. दिस कैन आल्सो बी डन सो फार एज द जम्मू एंड कश्मीर इज कंसर्न. ऑल डेटा which is required to reformulate these indicators are available in ready to use form. वो हम बाद में इसको कर भी सकते हैं. अब मैं आपको 2-4 आंकड़े दिखा देता हूँ, समय मेरे पास में बहुत ही कम है. आपने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का नाम सुना है?
ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो रफली एनरोलमेंट रेशियो इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि पता चले कि कितने बच्चे सिस्टम में हैं। जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं एज ग्रुप के हिसाब से उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल में या क्लासेज में कितने बच्चे सिस्टम में हैं, तो इसको कहते हैं एनरोलमेंट रेशियो, या इसको कहते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। इसी तरह एक और होता है नेट एनरोलमेंट रेशियो, एक और होता है एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो, एक और होता है एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो। तो इन 4 बिंदुओं पर बात करूंगा मैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में प्राइमरी लेवल पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है 112। इसका मतलब क्या हुआ? जितने बच्चे जम्मू एंड कश्मीर में हैं 6 से 11 वर्ष वाले, अंदाजन आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर में 6 से 11 वाले बच्चे कितने हैं? वो है करीबन 9,88,000। 11 से 14 वाले बच्चे हैं 8,81,000। करीबन 19 लाख बच्चे हैं आपके एलिमेंट्री लेवल वाले 6 से 14 साल वाले। तो प्राइमरी लेवल पे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आ रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में 112%। इसका मतलब क्या है? एक बात तो यहाँ पे निश्चित है कि केवल जम्मू एंड कश्मीर एज ए होल अगर हम एनरोलमेंट रेशियो देखें तो ये हमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग में मदद नहीं करेगा, अनलेस अनटिल इस रेशियो को, एनरोलमेंट रेशियो ही नहीं बाकी सभी के इंडिकेटर्स को अनलेस अनटिल वी कंप्यूट करें डिस्ट्रिक्ट वाइज, सभी 20 डिस्ट्रिक्ट के एनरोलमेंट रेशियो जो बाकी इंडिकेटर्स कैलकुलेट करें और उन डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक वाइज या जोन वाइज और बॉयज और गर्ल्स का, तब तो जाके आप ये पिन पॉइंट कर पाएंगे कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इतने बच्चे थे, उसमें से इतने एनरोल्ड है, इतने एनरोल्ड नहीं है। अभी बताया कि 93,000 बच्चे आपके हाउस होल्ड सर्वे से पता चला है कि आउट ऑफ स्कूल है। ये 93,000 कम नहीं है। अगर हम इसको 6 से 13 की पॉपुलेशन आपकी जो राज्य की है उसकी देखें, 5% बच्चे अभी भी आउट ऑफ स्कूल है, ये 93% के बेसिस के ऊपर। एंड 5% नंबर डिस्पाइट सर्व शिक्षा अभियान, डिस्पाइट माध्यमिक शिक्षा अभियान, डिस्पाइट समग्र शिक्षा अभियान ऑफ 4 years नाउ, इज ए ह्यूज नंबर। तो आपने बताया था प्रेजेंटेशन में कि ये दलित है, ये ओबीसी है, ये कौन है, SC ST। तो अब अगले साल का 22-23 का 23-24 का जब प्लान बनाएं तो जो आउट ऑफ स्कूल सर्वे से इंफॉर्मेशन आई है उसको आप यूज करें, उसके हिसाब से बच्चों को स्कूल में लाने की कोशिश करें, अन्यथा ये काम कभी भी होने वाला नहीं। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राइमरी लेवल पे है 112%। इसका मतलब है 112% इंक्लूडिंग अंडर एज 6 and over age 11 children are enrolled in primary corresponding primary classes 1 to 5 in Jammu and Kashmir। इसका मतलब ये नहीं है कि साहब ये 100 से ज़्यादा हो गया तो we have achieved the goal of universal enrollment, primary enrollment। No, it is including those of the underage and overage children। So gross enrollment ratio is a crude indicator which gives us some information about the participation of children of a particular age in the corresponding primary level of education। तो ये ज़्यादा मतलब का इंडिकेटर नहीं है। हमें तो ऐसा इंडिकेटर देखना है जो ये बताए कि भाई 6 से 11 के सभी बच्चों को स्कूल में लाना है, उसमें से कॉरस्पॉन्डिंग 1 to 5 ग्रेड्स में कितने हैं। तो वो एनरोलमेंट रेशियो जम्मू एंड कश्मीर में है 86%। 86% ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 10 दैट इज 9,88,000 बच्चों में से 86% बच्चे हैं वो 1 से 5 कक्षाओं के अंदर एनरोल्ड है जम्मू कश्मीर में। क्या कहना है आपका? इज इट गुड? इज इट स्टिल वी हैव टू डू ए लॉट ऑफ वर्क? ये बताता है कि 14% बच्चे 100 minus 86, 14% चिल्ड्रन आर नॉट एनरोल्ड इन 1 to 5 क्लासेस। क्या हम इनको आउट ऑफ स्कूल कह सकते हैं? क्या ये बाकी के 14% बच्चे आउट ऑफ स्कूल है क्या? जरूरी नहीं है। इनमें से कुछ बच्चे हैं वो नेवर एनरोल्ड है, कुछ ड्रॉप्ड आउट है और कुछ बच्चे
एक लेवल आगे में पढ़ रहे हैं। 6 से 11 वाला बच्चा 1 से 5 में होना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे एंट्री लेवल जल्दी एंटर कर देते हैं सिस्टम में, तो कुछ बच्चे हैं वो 6, 7, 8 में ही होंगे। इसलिए नेट एनरोलमेंट रेशियो इज ए बेटर इंडिकेटर ऑफ एनरोलमेंट पार्टिसिपेशन, बट इट इज gross enrollment ratio, net enrollment ratio is better than gross enrollment ratio, but it is not free from the limitations, because हम net enrollment ratio में उन्हीं बच्चों को लेते हैं 6 से 11 वाले जो 1 से 5 में हैं, लेकिन जो 6 से 11 वाले बच्चे 6, 7, 8 में हैं कक्षाओं में, उनको कंसिडर नहीं करते हैं। तो इट इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ एनरोलमेंट रेशियो, बट इज नॉट फ्री फ्रॉम द एरर्स। सो उसके लिए एक नया और इंडिकेटर है नेट एनरोलमेंट रेशियो। एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो वो जम्मू एंड कश्मीर में प्राइमरी लेवल के लिए आ रहा है 100। इसका मतलब है कि 6 से 11 के बच्चे जम्मू एंड कश्मीर में सभी बच्चे एनरोल्ड हैं, चाहे वो 1 से 5 में हो, चाहे 6 या 7 में 8 में हो, लेकिन सभी के सभी बच्चे जम्मू एंड कश्मीर में 6 से 11 वाले सभी एनरोल्ड हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? 6 से 11 वाले बच्चों को 1 से 5 में भर्ती करना, पढ़ाना। ये कब संभव होगा? जब हम यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। एज वी मूव टूवर्ड्स द यूनिवर्सलाइजेशन, children will start entering the system at the appropriate age, entry age, and that age is 6 साल का बच्चा जब पहली क्लास में एंटर करना शुरू करेगा, तब आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो और एडजस्टेड एनरोलमेंट रेशियो सारे एक हो जाएंगे। कोई ओवर एज अंडर एज नहीं बचेगा। लेकिन ये 100% नेट एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो बताता है कि बहुत सारे बच्चे जम्मू एंड कश्मीर में करीबन 14% बच्चे हैं वो ऊपर की क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। अच्छा, 40 minutes more or total 40? So 100% adjusted net enrollment ratio gives us idea that a good number of children of age group 6 to 11 are enrolled in the higher level than the prescribed level or 1 to 5 classes. एक चौथा एनरोलमेंट रेशियो और है, उसको बोलते हैं एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो। अब ये जम्मू एंड कश्मीर में आपके एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो 100 है, तो आपका एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो कितना आना चाहिए? 6 से 10 के अगर सभी बच्चे एनरोल्ड है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रेड और द लेवल, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 कहीं भी, तो वो तो 100 ही आना चाहिए। तो एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो 100 है, तो वो एज स्पेसिफिक भी 100 ही आएगा, वो 100 ही है। ये डेटा तो सही बता रहा है आपका, थैंक्स टू यू डाइस। ये तो प्राइमरी लेवल की बात है। अपर प्राइमरी में अब मैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में बात नहीं करूंगा, अब मैं अपर प्राइमरी लेवल पे आपका नेट एनरोलमेंट रेशियो बताता हूं। वो है केवल 43.4%। इसका मतलब क्या हुआ? 46.6% बच्चे जो 11 से 14 साल वाले हैं वो 1 से 5 कक्षाओं में 6, 7, 8 में एनरोल नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग लेवल में एनरोल नहीं है। दिस इज ए बिग नंबर। 46%, 50 कितना हुआ? 43, 100 - 43, 57%। इतने बच्चे आपके एनरोल नहीं हैं। इट्स ए वेरी बिग नंबर। अगर आप कहेंगे साहब नहीं वो 6, 7, 8 में नहीं, उनमें से बहुत सारे बच्चे 9, 10, 11 में भी है, तो वो आ रहा है 60%। तो 100 में से 40 बच्चे जो 11 से 14 साल वाले हैं जम्मू कश्मीर में अभी भी एनरोल्ड नहीं हैं। आपका आउट ऑफ स्कूल सर्वे किया है, ये जो यू डाइस के नंबर है इनको आप अपने हाउस होल्ड सर्वे है उससे मैच कर सकते हैं, उसको मैच करवा के देखना चाहिए। या तो मिलने के तो असंभव है, दोनों कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों काफ़ी मैच कर सकते हैं, हो सकता है, ऐसा लग रहा है। जो फिगर आपने दिया 93,000, उसको मैंने फ़ौरन कैलकुलेट किया, इट गिव्स मी ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ऑफ 5%, और उसके हिसाब से लग रहा है कि लगभग वो ही आएगा।
तो ये बात तो हो गई कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जम्मू एंड कश्मीर में हम ठीक ठाक अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन भैया बच्चे हैं वो एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी वाला अपर प्राइमरी में नहीं जा रहा है, अपर प्राइमरी वाला सेकेंडरी में नहीं जा रहा है, सेकेंडरी वाला हायर सेकेंडरी में नहीं जा रहा है। अगर हम नेट एनरोलमेंट रेशियो की बात करें सेकेंडरी लेवल पे तो आपको जान के ताजुब होगा कि वो तो केवल 31% ही है। केवल 31% बच्चे ही आपके सेकेंडरी क्लासेज में हैं कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड के, और केवल 30% बच्चे ही हायर सेकेंडरी नेट एनरोलमेंट रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ, 70% बच्चे जो हायर सेकेंडरी एज ग्रुप के हैं वो अभी भी हायर सेकेंडरी ग्रेड्स में नहीं एनरोल नहीं है। हो सकता है उसमें से कुछ बच्चे ऊपर के ग्रेड में हो या और कहीं हो, बट चूँकि अब हमारे पास में कॉलेज एजुकेशन का डेटा नहीं है इसलिए एडजस्टेड एनरोलमेंट रेशियो यहाँ पे नहीं निकाला है। लेकिन अगर एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो की बात करें तो आप देखेंगे कि 14 से 15 साल वाले केवल 50% और 16 से 17 साल वाले केवल 35% बच्चे ही एनरोल्ड है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल और ग्रेड। सिस्टम में है वो लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेड्स में नहीं है। तो ये आपको देखने की जरूरत। अगर ये जो बातें हम कर रहे हैं स्टेट लेवल के डेटा के बेसिस के ऊपर, इसके बेसिस के ऊपर कोई मीनिंगफुल प्लानिंग कैन नॉट बी डन अनलेस अंटिल वी नो वेयर डू दीज 20 डिस्ट्रिक्ट स्टैंड। 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अलग अलग ब्लॉक की क्या स्थिति है, लड़कियां कितनी बार है, लड़कियों का NER कितना है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स का वो उनका NER और ये एज स्पेसिफिक एनरोलमेंट रेशियो और कितना है। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू पिन पॉइंट द प्रॉब्लम। हमारा मकसद ये जानना नहीं है कि GR कितना है, NER कितना है, ये कितना है वो। हमारा मकसद तो है कि जो बाकी के बच्चे हैं उनको सिस्टम में लेके आना। वी वॉन्ट टू इम्प्रूव द सिचुएशन एंड समग्र शिक्षा इज a great opportunity for all of us. Still, nothing is lost. We can still gain and move towards achieving the goal of universal school education in the state of Jammu and Kashmir. हम fortunate हैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में कि हिंदुस्तान में तो करीबन 180 मिलियन बच्चे हैं 1 से 8 में, लेकिन हमारे यहाँ तो केवल 19 लाख बच्चे ही हैं। हिंदुस्तान में करीबन 1489,511 स्कूल्स है, हमारे यहाँ तो केवल 28,805 स्कूल ही है। तो छोटा सिस्टम होने की वजह से वी कैन मैनेज द थिंग्स ब्यूटीफुली इफ वी अंडरटेक सीरियसली द डायग्नोसिस एक्सरसाइज। डायग्नोसिस ढंग से करेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो सही हो जाएगी। उसके लिए हमें मीनिंगफुल प्लानिंग करवानी है, सीरियसली प्लानिंग टीम्स को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलप करना है। ये वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है, ये इट इज़ ए रिगरस कंटिन्यूस एक्सरसाइज। उसको सीरियसली करना पड़ेगा। ये चलती का नाम गाड़ी है, वैसा ये काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। भैया कितना और वेट करेंगे यार। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, 2007-8 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, 2018 में समग्र शिक्षा अभियान। हर बार आप तो नाम चेंज कर रहे हैं, क्या प्रोग्रेस भी कुछ हुई है? एक चीज़ मुझे बता दीजिए, आपके समग्र शिक्षा अभियान में जम्मू एंड कश्मीर में आपके टारगेट्स क्या हैं और उन टारगेट्स को कब तक अचीव करना है? एक भी बंदा बता दे। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग टारगेट्स ऑफ यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन विद रिगार्ड टू एनरोलमेंट रेशियो, रिटेंशन रेशियो, ट्रांजेक्शन रेट? बताओ। नेट एनरोलमेंट रेशियो कब तक अचीव करना है? दिस इज नॉट फ्री फॉर ऑल। ये जिंदगी चलेगी जब तक तो नहीं करना है हमें, क्या? इसलिए diagnosis plays a very important role, and without data no diagnosis exercise can be undertaken. Even if the data is available, without constructing, analyzing indicators, we cannot move forward. ये केवल एक बात मैंने तो आपको ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो, नेट एनरोलमेंट रेशियो के बारे में बताई थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ड्रॉप आउट रेट भी प्राइमरी लेवल पे 4% है, जो करीब करीब वही आ रहा है। उन्होंने तो पूरा बताया था आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो 5% है, लेकिन जो प्राइमरी लेवल का ड्रॉप आउट रेट 5% है। अपर प्राइमरी लेवल पे आपका
अगेन 3.5% है। सेकेंडरी लेवल पे ड्रॉप आउट रेट 6% है। प्राइमरी से अपर प्राइमरी में आपके 8% बच्चे ट्रांजिट नहीं कर पा रहे हैं। अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी में 7% बच्चे ट्रांजिट नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी के अंदर 10% बच्चे आपके ट्रांजिट नहीं कर पा रहे हैं। और ये सारा रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके ट्रांजिट रिटेंशन रेट में। रिटेंशन लास्ट में मैं ये तो कहूँगा, रिटेंशन रेट क्या होती है? रिटेंशन रेट है मतलब आज का ग्रेड 2 का एनरोलमेंट और 12 साल पहले का ग्रेड 1 का एनरोलमेंट, आज का ग्रेड 10 का एनरोलमेंट, 10 साल पहले का ग्रेड 1 का एनरोलमेंट। बच्चे जहाँ से सिस्टम में दाखिल हुए उसको को रिलेट करते हैं आज से। तो जम्मू एंड कश्मीर में रिटेंशन रेट इज ओनली रिटेंशन रेट 1 to 5 इज 84%। मतलब जो 100 बच्चे थे 5 साल पहले, उनमें से 16% बच्चे ड्रॉप आउट हो गए। द रिटेंशन रेट एट द एलिमेंट्री लेवल इज 66%। 34% बच्चे वहाँ पे नहीं पहुँचे, 8 तक ही नहीं आए, पहले ही ड्रॉप आउट हो गए। और 59% इज योर 1 to 10 रिटेंशन रेट, तो करीबन 31% बच्चे वहाँ ड्रॉप आउट हो गए। और 1 to 12 का रिटेंशन रेट इज 48%, 52% बच्चे वहाँ हो गए। वी हैव इम्प्रूव्ड ए लॉट, स्टिल वी हैव टू इम्प्रूव ए लॉट मोर, for which we have to undertake the rigorous analysis of the data in the form of diagnosis exercise. Once the diagnosis exercise is over, it will help us in knowing where do we stand, what are the educational problems in my district, my zone, my state, and who are the what group, focus groups which need your attention as educational planner. ये सब चीज़ें अगर आप प्लान फॉर्मुलेट करने के पहले कर लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल वाला प्लान आपका बहुत ही सही हो सकता है। और आपको जो इनिशिएटिव करेंगे आप अपनी, वो इसके बेसिस पे होना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि जम्मू कश्मीर या भारत सरकार ने कह दिया ये नॉर्म्स है तो नॉर्म बेस्ड प्लानिंग नहीं करना है। नॉर्म ठीक है, नॉर्म बेस्ड भी करो, लेकिन टारगेट तो रखो यार। आज की तारीख में कोई टारगेट ही नहीं है। आज की तारीख में नए जो फेजेज आ गए हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडल, सेकेंडरी, उसके हिसाब से ना तो डेटा है ना कोई एनालिसिस है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो आई एम सॉरी टू से वी आर नॉट गोइंग टू अचीव द गोल ऑफ यूनिवर्सल स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, नॉट ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, in India. We have achieved a lot, but still we have to achieve a lot more. Thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you so much, sir. We're running extremely short of time. We will kindly proceed to the upper floor for a lunch break.